याद रखना, कभी भी देवालय शिवालय में कहीं भी देवी मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करते समय आंख खुले रखिए। और ज्यादातर लोगों को हमने देखा है आंख बंद कर देते, भगवान के सामने पहुंचते उसकी आंख बंद रहती, नहीं कभी नहीं। आप द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, आप सोमनाथ महादेव का दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और माता अम्बा भवानी का दर्शन कर रहे, तो आंख खुले रखिए, आंख खुले रखकर उसका दर्शन करें तो हमारी आंख धन्य है। जिनकी आंख साधु संत महापुरुष देवी देवियों का दर्शन नहीं करते और जो प्रकृति का दर्शन नहीं करते, वो आंख नहीं, वो तो मोर पंख है। क्या तुलसी ने कहा होगा, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं सब कुछ शास्त्र सम्मत है, ये तुलसी ने गाया है। नहीं संत दर्शन नहीं देखा, जिनकी आंखों ने कोई संत दर्शन, कोई साधु दर्शन, कोई सज्जनों का दर्शन, तीर्थ दर्शन, देव दर्शन, देवी दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, नहीं देखा। वो आंख क्या है, ये तुलसी ने कहा। नहीं संत दर्शन नहीं देखा, क्या कहा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। આપણા જીવનનો શરીરનો 99.99% આધાર એ આંખ ઉપર છે। 24 કલાકમાં 25,000 થી વધારે રંગીન ચિત્રો યાદ અને રેકોર્ડ કરી શકે એવી આંખની ક્ષમતા છે। જેની પાસે આંખ નથી એની સ્થિતિ ક્યારેક પૂછી લે તો ખબર પડે। ક્યારેક ક્યારેક એવો વિચાર આવે, જેવી રીતે માણસ મૌન સોમવાર કરે એવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક આંખો બંધ રાખીને સોમવાર કરવો જોઈએ। આખો દિવસ આંખો બંધ રાખવાની ક્યાં હાલત થાય, ત્યારે આંખોનું મૂલ્ય સમજાય આપણે। ક્યારેક એવું વ્રત કરું ભાઈ સોમવાર છે, મૂંગા સોમવાર તો દુનિયા આખી કરે છે, પણ આપણે જ આંધળા સોમવાર કરીએ, પટ્ટી બાંધી દેવાની, આખો દિવસ કાંઈ જોવાનું નહીં। એવા ક્યારેક સોમવાર કરવા જોઈએ, કાન બંધ કરી દેવાના, આખો દિવસ કાંઈ સાંભળવાનું જ નહીં, અંદરનો અવાજ જ સાંભળવાનો। પણ ભાગ્યે જ એવા વ્રતો તો કોઈ કરતું નથી। સાંભળેલું કરતા આંખોએ જોયેલું બહુ જ યાદ રહી જાય છે, અને ઘણી વાર આંખોએ જોયેલું પણ ઘણીવાર જૂઠું પણ હોઈ શકે છે। આંખ ઘણીવાર ભ્રમિત કરતી હોય છે, તેથી આંખને બહુ સાચવવી। અમે ઘણીવાર, મને તો ઘણા સમયથી નથી કહ્યું, પણ પહેલા હું કહેતો હતો કે જે માણસે દુનિયાને જીતવી હોય એ માણસે પોતાની આંખ અને પોતાના હાથ ચોખ્ખા રાખવાના। એ માણસ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછો ના પડે। ધનનો ઢગલો પડ્યો પણ આપણો હાથ ત્યાં જવો નહીં જોઈએ। દુનિયાનું રૂપ અને સ્વરૂપ આપણી સામે હોય, ઇન્દ્રની અપ્સરાઓ આપણી સામે હોય, પણ આપણી આંખ ત્યાં જવી ન જોઈએ। આંખને સાચવી લઈએ, બધું સાચવા જાય, પણ માણસ ત્યાં જ મોટી ભૂલ કરતો હોય છે। આંખ બગડે અને હાથ બગડે, તેનો ભાવ બગડે। તેથી તુલસીએ કહ્યું છે કે જેની આંખ કોઈ સંત દર્શન, કોઈ સાધુ દર્શન, કોઈ દેવ દર્શન, કોઈ દેવી દર્શન, કોઈ તીર્થ દર્શન નથી કરતી, એ આંખ નથી, એ મોરપંખ છે। આગળ કહ્યું કે જેનું મસ્તક કોઈ સાધુ સંત મહાપુરુષ દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં જે ઝૂકતું નથી, એ મસ્તક નથી, એ તો કડવી તુંબડી છે। ये शब्द प्रसाद रामचरित मानस तुलसी का है। ते शीर कटु तुंबरी समतुला
તોલાય તેના સમાન છે. તુલસીએ કહ્યું તે શિર પતો તુંગરી સમતુલા જે નમત હરિ ગુરુપદ મૂલા જે નમત હરિ ગુરુપદ મૂલા. જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ આસ્થા નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને શબ સમાન સમજવું. અને દુનિયામાં અનેક એવા માણસો તમને પણ મળ્યા છે કે જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા પણ નથી, વિશ્વાસ નથી. મંત્રમાં અદ્ભુત શક્તિ છે, પણ મંત્ર કરતા એ મંત્રમાં રાખેલી શ્રદ્ધા છે, એમાં અદ્ભુત શક્તિ છે. જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, આસ્થા નથી, જેના હૃદયમાં કોઈ ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, કોઈ સત્કર્મ કરવાનો કોઈ ભાવ નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને મરેલો સમજવું. જેન હરિ ભગતિ હૃદય નહીં આન. જેના હૃદયમાં ભગવાન મહાદેવ, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, કોઈ પણ ઈશ્વર એવી સંકુચિતતા નથી. મહાદેવની હું કથા કરું છું તો મહાદેવ પ્રત્યે જ હું તમને કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ, પણ એવું ન સમજો કે સિર્ફ મહાદેવ જ. રામજી આપના ઈષ્ટ હોય તો ભગવાન રામનું ભજન કરો, ભગવાન દ્વારકાધીશ ભગવાન કૃષ્ણજી આપના ઈષ્ટ હોય તો એનું ભજન કરો. કોઈ પણ ઈષ્ટ, કોઈ પણ ભગવાન. इसलिए भगवान राम, कृष्ण, शिव, कोई भी, अरे आप देवी उपासक है तो देवी के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए. परंतु तुलसी ने कहा कि जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति कोई भक्ति नहीं है, उनके लिए कहा जिन भक्ति हृदय नहीं आली. जना हृदय में ईश्वर के प्रति कोई भक्ति नहीं. भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास, संपूर्ण भरोसा. जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वही कर रहा है, और कौन करता है? मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो कठपुतली हूं. जैसे हो मुझे नृत्य कराता है वैसे मैं नृत्य करता रहता हूं. ईश्वर के प्रति उनको भक्ति कही है, मैं निमित्त मात्र हूं. बहुत सारे मेरे कथा का आयोजक जजमान शरी वो कुछ नहीं लिखते, निमित्त मात्र जजमान लिखते हैं. हमारे जगदीश भाई खाटू वाला हुए, वो पत्रिका बनाते थे, पत्रिका में किसी का नाम नहीं, कोई नाम नहीं. बहुत बड़े, बहुत बहुत कथा करे. जीवत शव समान तेरी प्राणी. और तुलसी ने कहा, मैं तो बहुत कम शब्द में पूरक बात कर रहा हूं, शास्त्र सम्मत पूरक बात जिन्हें कहते हैं. जिनकी जीवा पर परमात्मा का नाम नहीं है, उनकी जीवा दादुर की जीवा. दादुर मतलब डेढ़ को बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ड्रों 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 करता रहता. इसमें बारिश होने के बाद इतना बोलते, इतना बोलते, इतना बोलते. बोलने का कोई हेतु नहीं, बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है. ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो निरंतर बड़बड़ाहट 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 करते रहते हैं. और एक बात कहूं, बहुत लंबी बात कम शब्दों में समझाना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है. ऐसे तो ठीक है, सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे, एक बात अलग है, लेकिन बहुत लोग तो मोबाइल में भी इतनी लंबी 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 बात करते हैं. उसको पता नहीं कि जिन व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं वो किस काम में है, किस अवस्था में है, उसको पता नहीं. लेकिन इतनी लंबी लंबी लंबी, इसलिए 5 शब्दों से बात पूर्ण हो रही है तो 6ठे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए. व्यर्थ क्यों बोले? और जितने देर तक फोन कान में रहेगा, कान के पास, इतने ज्ञान तंतु को डैमेज करता है. आपके हाथ में, आपकी जेब में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं, वो बॉम्ब है. हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम सबको मालूम नहीं है.
पर आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हुई कि आपने मोबाइल ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी इसमें आप जो बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी है। और थोड़े समय के बाद सब लोग मोबाइल से दूर भागेंगे, लोग थक जाएंगे। इसलिए हमारी जिह्वा पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। और कलयुग में तो यही श्रेष्ठ है। हम जब तब साधना, अनुष्ठान, उपासना, बहुत बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े यज्ञ करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिनमें कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक ही बात, कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा, जीवागरे वर्तते तस। हर कोई व्यक्ति कर सकता है। આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ, કરતા જાઓ ઘરનું કામ અને લેતા જાઓ હરિનું નામ। થઈ ગઈ ભક્તિ। ભક્તિ કરવા માટે કે વિશેષ કોઈ સમય નહીં। આપણા પહેલાના વડીલો હતા, એ પોતાનું કામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા, ઘરકામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા। એવી તો અનેક કથાઓ પણ છે ને। તેથી તુલસીને કહા, इसीलिए कहा जो नहीं जो न करई राम गुण गाना, जीह सो दादूर जीह समाना, जीह सो दादूर जीह समाना। उनकी जीवा मनुष्य की नहीं है, उनकी जीवा मेढक की है। हमारे ब्रह्मलिन नौगरजी बापा कहते थे कि ईश्वर स्मरण करने से स्मृति बढ़ती है। ईश्वरનું સ્મરણ કરવાથી યાદ શક્તિ વધે, આપણી ઉર્જા સકારાત્મક બને છે। આપણે સાવરકુંડલામાં બ્રહ્મલીન નોગરજી બાપાની કથાઓ ઘણી થઈ છે અને મને એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો, કારણ કે મારું ગામ મોટા ઝીંઝુડા, એટલે ગગલાણી પરિવાર બધા કલકત્તા રહે અને ગગલાણી પરિવાર એમના ખાસ સેવકો, એટલે ગગલાણી પરિવારના માધ્યમથી એ ઝીંઝુડામાં રહે અને એમને એકાંત ગમે ને અમે લોકો જંગલમાં રહીએ। ઝૂંપડામાં રહેનારા માણસ એ સમય આ નોગરજી બાપા ત્યાં રહેતા અને મને એમના હાથનું ખાવાનું પણ મળ્યું છે, એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો છે। અને વારંવાર એક વસ્તુ કહેતા હતા કે ઝૂંપડામાં જે આનંદ છે એ રાજમહેલમાં લગભગ આનંદ દેખાતો નથી। એ આ બ્રહ્મલીન નોગરજી બાપા હજી પણ એમના વસ્ત્રો મારી પાસે છે, એ ખેસ પહેનતા હતા। અને એ સમયમાં તમે એક નાના બાળકો, ઝૂંપડામાં રહેનારા, ભિક્ષાવૃત્તિ કરનારા એક સાધુના દીકરાઓ બધે, આવી તો કોઈ કલ્પના નહીં હતી, પણ કદાચ એમનું હાથનું ભોજન કરેલું કામ આવી ગયું છે। 2 मिनट के लिए हम ब्रह्मलीन नौगरजी बापा को याद करेंगे, भाव से याद करेंगे।
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसलिए परमात्मा की कथा साक्षात गंगा, इस सप्त गंगा का प्रतीक है। गंगा में जाकर हम तन से स्नान करते, लेकिन कथा में हमारा मन का स्नान है। कथा कोई सामान्य नहीं है, कथा एक तीर्थ यात्रा है, कथा गंगा में स्नान है। मन को ताजा तरोजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय है तो भगवान की कथा है। रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है और स्वयं शिव जी ने कहा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा स्नान करने के लिए तो वहां पहुंचना पड़ता है, परंतु ये कथा तो गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में, घर-घर में पहुंचती है। पूछे हुए रघुपति कथा प्रसंग, शिव और पार्वती का सुंदर संवाद। जब पार्वती ने भगवान महादेव के आगे जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान मुझे कथा कहिए, मुझे कथा सुननी है। और दुनिया के श्रेष्ठ श्रोता माता पार्वती हैं। अत्र वक्ता महादेव, भगवान स्वयं शिव वक्ता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भी यही है। कोई आपको पूछे कि ये महादेव की कथा किसने पहले गाई, तो आप कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी ने ये कथा गाई। और किसने पहले श्रवण किया? माता पार्वती ने, माता भवानी ने, उमैया ने श्रवण किया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, अपने स्वयं का अनुभव स्वयं भगवान महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं। और पार्वती ने दूसरे व्यक्ति को कथा कही, ऐसी कोई बात नहीं मिली। परंतु जब शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे थे, तब भगवान महादेव का अवतार शिलाद मुनि का पुत्र, जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, एक खड़े होकर कथा श्रवण करते थे। शिव पार्वती का संवाद, स्वयं भगवान नंदिकेश्वर खड़े खड़े कथा श्रवण करते थे। इसलिए बहुत सारे हमारे सौराष्ट्र में कहीं कथा होती है ना, तो बहुत सारे श्रोता 9 दिन खड़े रहते हैं, बैठे बैठे कथा ने श्रवण करते, खड़े रहकर कथा श्रवण कर। वो नंदी परंपरा है। ऐसे बहुत सारे भाइयों बहनों को मैंने देखा है, सौराष्ट्र के गांव में मैंने ऐसे देखा है। 9 दिन के लिए उपवास भी करते हैं, 9 दिन के लिए व्रत भी रखते हैं, 9 दिन के लिए धरती पुरुष होते हैं, 9 दिन के लिए बहुत कुछ खाने पीने का त्याग भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं। कथा श्रवण करने के बहुत सारे नियम हैं, श्रोता वक्ताओं के भी नियम है।